friends. I'm back. How are you all doing? We are doing fine, and I hope you are doing fine too. Stay safe. So here I come with My new video. The topic of the video is judgment writing in judicial services examination papers. in my last Video, video. I asked all of you to write in comment section which video you want me to make, And I went through all your comments and I decided that before making any other video, I should make a video on judgment writing. Okay. So the reason behind my choice is that because if I choose any other topic, let's say how to prepare for mains examination or prelims examination, etc., etc., then this cannot be summed up in one video. But I think judgment writing can be summed up in one video, one single video. So without wasting any time, I'll start with the topic. So this topic is very important as the question regarding judgment writing in the mains examination is around 15 15 to 20 marks, right? And if you properly attempt the question, then you can easily get, like, if it is of 15 marks, you can get 12, 13, and if it's of 20 marks, then you can get 17, 18 marks easily if you write it properly. and attempting This question becomes very easy because when we judges write judgments in courts, uh, we are expected to deal with every single evidence, every single thing we notice in the file. and we cannot write a judgment like this only. We have to go through the file, the whole file, read the evidences carefully, And read the statement of accused carefully, and after that after that examining the evidences which have come up in the file. But in the question paper in mains examination, you get some of the things, like if it's a criminal if it's a judgment in criminal case, then you get FIR, you get a statement of witnesses. But so you are not expected to deal with the minute things. You have to write a judgment like a beginner, okay? And so it becomes very easy to get questions to get scores, good score in the this question. But many of the aspirants don't understand this thing, and they don't work on this topic very much, and they lose their marks, and that's why sometimes they don't get selected. so my advice is that Because uh, it this question consists like 20 marks and is of almost one fifth of the paper. So judgment writing is a very easy and scoring topic in mains examination of judicial services. So now the thing is that many of you in the comment section ask that how can we prepare for judgment writing, what is the good book for for judgment writing, my advice is that the you can only prepare for judgment writing in a good way is through reading judgments, okay? There's no such book which can help you better than any judgment. There are books, but a judgment, a copy of judgment will help you better than a book. And now the judiciary has introduced e-court services, so you can easily get the copies of the judgment of the judges of lower courts and you can prepare for that, okay? Now I will tell you in short that how can you prepare for judgment writing. So judgment writing is of two kinds: civil judgment writing and criminal judgment writing. criminal judgment writing Is
mostly in civil judgment writing, the judgment is mainly dependent on the evidences introduced, evidences given by the parties, okay, the documentary evidences, and the oral evidences uh, have the second place, okay. And in criminal cases, um, uh, this thing is different. Oral evidences have more importance than the documentary evidences, because documentary evidences are created by the court, by the police. So they need to be proved by the oral evidence, okay. So let's start with the judgment writing in criminal cases. So if you have seen a copy of any judgment of the lower court in criminal case, you see that first thing in which comes in the judgment is the name of the court and the presiding officer, like the court of judicial magistrate first class Dausa, yeah, judicial magistrate first class Jaipur, and then the name of the officer, the presiding officer. Then comes the name of the case and the name and number of the case, and then you write the party's name. So in criminal cases, first party is state and the second party is the offender. Then you write in the right side, you write the date of the judgment, and then you write in which sections the case is, what are the charges over the on the accused, what charges have been imposed on the accused. So judgment under section, let's say 420, 467, 468 IPC, or let's say 323, 341 IPC, okay. And then you start with the judgment. So the way we start, like in lower courts in Rajasthan, we write judgments in Hindi. So we start like this. Uh, and if you if you take the exam in English medium, then you have to write the judgment in English medium, okay. But in lower courts, we write judgments in Hindi. So you start with the facts of the case. What are the facts of the case? Like, this FIR has been lodged in this police station by this person on this date, and then the police registered the FIR under section these, and the FIR number was this, and the investigation was started, and after investigation, charge sheet was filed against person A under section this is this, and after that the accused the case was tried, and the prosecution side introduced these evidences, examined these witnesses. We write the witness's name, prosecution witness's name, then the statement of the accused under section 313 were recorded, and 313 were recorded, and after that, if defense evidence is presented, then the defense evidence, the details of the defense evidence is to be given in the judgment. And then what did the accused say in 313 has also to be written in the judgment, that what accused has said in his 313 CRPC's statement. And after that, after that we write that on these things, these charges were framed on accused, let's say A, on accused A, these charges are framed. Now the question of determination are to be decided, that whether are to be written, that what are the question to be determined by the court, whether accused A on this date, like let's say we write the case is that A was negligently driving a car and hit X, and X got severely injured by the hit, okay. So this case comes under section 279, 337, 338 IPC.
So now the question of determination will be like this: whether A was on the given date at this place, was driving the car negligently, and negligently and hit X, and by that X got severely injured and got simple and grievous hurt. So I just told you about 279, 337, 338. But you have to keep this thing in mind, that while framing the question of determination, the, all the ingredient of the sections which has been charged on the accused should come. Like if the charges of theft, then all the ingredients, all the 5 ingredients of the theft should come in the charge. Okay. And if the question is of negligent driving and rash and negligent driving and hitting a person and causing him hurt, then all the ingredients of section 279, 337, 338 should come. Likewise cheating and everything. So for writing a judgment, first you have to see that the in what sections the case come under. Okay. And then while framing charges, you need to keep in mind that all the ingredients of those sections should come in the charge. Okay. So that's the point, that's the key. First you have to determine that what charges will be on accused. So half of your work is done when you decide the what charges would be on accused. जब आपको समझ आ जाता है कि उसके ऊपर क्या क्या चार्जेस लगे हैं, आपका काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि फिर आपको उसके बाद उसके इंग्रेडिएंट्स लिखने होते हैं. इंग्रेडिएंट्स लिखने के बाद फिर आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं. आप चार्जेस होने के बाद देन यू कम ऑन द एविडेंसेस लेड बाय द पार्टीज. सो evidences laid by the parties, and when parties then you write like the prosecution witness A said this, and prosecution witness B said this, C said this. But one thing is that whatever A, B, whatever witness number 1, 2, 3 said, you don't have to write all of the things. You just have to write with regard to the charge framed. Okay, what one witness number 1, 2, 3 and 3 has said regarding the charges against accused. You don't have to write every detail. Okay, how prosecution witnesses are proving the guilt of accused. Okay, and how the accused advocate has contradicted them, and whether accused advocate has failed to contradict or successfully contradicted, you have to mention. जैसे कि विटनेस मान लीजिए रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग का केस है. विटनेस नंबर ए बोल रहा है, विटनेस नंबर 1 बोल रहा है कि मैं एक्स के साथ था, मैंने मारते हुए देखा है. और जब अक्यूज़ का वकील उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एंड ही इज सेइंग कि मैं 5 मिनट बाद पहुंचा, तो अब प्रोसिक्यूशन विटनेस की वेरिसिटी ख़त्म हो गई, क्योंकि वो उसने चीफ में कुछ और बोल दिया है और अपनी क्रॉस में कुछ और बोल दिया है. जब उससे क्रॉस किया है तो कॉन्ट्राडिक्ट किया है, तो अक्यूज़ का एडवोकेट सक्सेसफुल हो गया है, और अब उस विटनेस की कोई वेरिसिटी की कोई वैल्यू नहीं रह गई है, क्योंकि उसने दोनों तरफ अलग अलग बातें बोल दी हैं. तो इस चीज़ का फ़ायदा एक्यूज़ को मिलता है. आफ्टर डीलिंग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्री एंड ओरल एविडेंसेस, अब आपको डिसाइड करना पड़ता है कि यह जो चार्जेस एक्यूज़ के ऊपर लगे हैं वो किस तरह प्रूव हुए हैं, या आप अगर मानते हो कि कन्विक्शन होने जा रहा है तो किस तरह एक्यूज़ को के अगेंस्ट चार्जेस बियॉन्ड डाउट प्रूव हुए हैं, ये दिखाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा. किस तरह चार्जेस अगर नहीं प्रूव हुए हैं तो कहाँ जो है कि कोई डाउट क्रिएट हो गया है, और बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज़ को किस तरह दिया जाना है, कहाँ डाउट क्रिएट कर दिया है अक्यूज़ के एडवोकेट ने, अक्यूज़ ने, ये सब आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा. आपके पास एग्ज़ाम में सिर्फ विटनेसेस के स्टेटमेंट ही होंगे, या कोई एक आध डॉक्यूमेंट की कॉपी आपको दे दी जाएगी. तो मेनली जो जजमेंट राइटिंग का क्वेश्चन होता है उसमें ये देखा जाता है कि आप चार्जेस देख पा रहे हो कि नहीं, कि क्या चार्जेस हैं उस बंदे के ऊपर, या फिर आप कैसे उनके स्टेटमेंट को पढ़ रहे हो. ये चीज़ें आपको चीफ और क्रॉस की कॉपी दी जाएगी,
और उससे आपको देखना पड़ेगा कि कैसे प्रूव कर पाए हैं या नहीं प्रूव कर पाए। आपके पास पूरी फाइल नहीं होती, जज के पास पूरी फाइल होती है। स्टेटमेंट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें फाइल में देखने वाली होती हैं जो हम लोग देख के डिसीजन करते हैं। लेकिन आपके पास लिमिटेड चीज़ होगी तो आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाएगा कि आप एवरी डिटेल बिल्कुल एक जज जैसा जजमेंट लिख दें। आप नहीं लिख पाएंगे क्योंकि आपके पास सारी चीज़ें होंगी नहीं। सो डोंट पैनिक, सिंपल चीज़ें आपको लिखनी है। स्टार्ट करना है कोर्ट के नाम से, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नाम से, पार्टीज़ के नाम लिखने हैं। उसके बाद कौन से सेक्शन के अंडर ये जजमेंट आप करने जा रहे हैं, किस डेट को जजमेंट कर रहे हैं, फैक्ट्स क्या थे, उसके बाद क्या जो है एविडेंसेस लीड किए दोनों पार्टीज़ ने, प्रोसिक्यूशन के क्या ओरल एविडेंसेस थे, क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस थे, किस किस विटनेस को एग्जामिन कराया, किस किस डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट करवाया, उसके बाद किस किस उसने उसके बाद किस किस ने क्या क्या कहा, किस किस विटनेस ने क्या कहा, चार्जेस क्या लगे, उन चार्जेस के रिगार्डिंग विटनेसेस ने क्या कहा और उनको कैसे कॉन्ट्रोडिक्ट किया गया, कॉन्ट्रोडिक्ट करने पे वो सक्सेसफुल। फिर आपको एक या दो पैरा में जिस्ट लिख देनी पड़ेगी कि किस तरह प्रोसिक्यूशन प्रूव कर चुका है अगर आप कन्विक्शन मानते हैं तो, या किस तरह प्रोसिक्यूशन फेल हो गया है प्रूव करने में अगर आप मानते हैं कि एक्विटल इसका होना है। अब आपको अपना लिख देना है कि हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ये जो जजमेंट है, बंदा है इसका जो बियॉन्ड डाउट इसके चार्जेस को प्रूव नहीं कर पाया है या बियॉन्ड डाउट प्रूव कर दिया है, जिस भी आप डिसीजन पे पहुंचते हैं। नाउ इसके बाद आता है, अब मान लीजिए आपने एक्विटल कर दिया है, आपको लगता है कि इसने कुछ आप प्रोसिक्यूशन प्रूव करने में फेल हो गया है, बिकॉज ड्यूटी प्रोसिक्यूशन की है केस को प्रूव करने की। अगर प्रोसिक्यूशन फेल हो गया है तो आपको उसका एक्विटल करना होगा। अब ना, जब आपने ये मान लिया है कि प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड डाउट प्रूव नहीं कर पाया है और डाउट बेनिफिट ऑफ डाउट हम एक्यूज को दे रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपको लिखनी पड़ती है इसलिए क्योंकि प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड डाउट केस को प्रूव नहीं कर पाया है, इसलिए इसको अब दोष मुक्त किया जाता है, एक्विट किया जाता है, पर्सन टू बी एक्विटेड। और उसके बाद चार्जेस लिखने पड़ते हैं कि किस किस चार्जेस से आप उसको एक्विट कर रहे हैं। तो आपको पूरे ही चार्जेस से, अगर आपने पूरा एक्विटल माना है पूरे चार्जेस से एक्विट करेंगे, अगर आपने हाफ कन्विक्शन हाफ एक्विटल माना है तो आप बताएंगे किन किन सेक्शंस में आप उसको कन्विक्ट कर रहे हैं, किस किस में आप उसको एक्विट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, अगर आपने सारी सेक्शंस में उसको कन्विक्ट कर दिया तो कन्विक्ट कर दिया है। एक्विटल करने के बाद यहाँ पे आपका सारा काम ख़त्म हो जाता है, एक्विटल हो गया, आपने उसको कर दिया। आप उसे 437 के जमानत मुचलके के लिए लिखेंगे कि आपको ये जमानत मुचलके पेश करने हैं। वो उसमें लाइन आती है कि इसको बरी किया जाता है और ये जमानत मुचलके पेश करें। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नाम और ये ख़त्म हो जाता है। अगर मान लीजिए आप कन्विक्शन कर रहे हैं या हाफ कन्विक्शन हाफ एक्विटल कर रहे हैं तो काम थोड़ा और बढ़ जाता है। अगर आपने कन्विक्शन कर दिया तो आपको अब उसको पनिशमेंट देना पड़ेगा। पनिशमेंट क्या देंगे, तो कभी भी पनिशमेंट के लिए हमेशा पनिशमेंट बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए, कितना पनिशमेंट है, ठीक है, अप टू है या एक फिक्स टर्म का है कि कैसा है। उसके बाद फ़ाइन और है या बोथ है या क्या है, या दोनों एंड है या और है या बोथ है, कैसे कैसे किस तरीके से है, तो वो सब चीज़ आपको पनिशमेंट की ध्यान में रखनी है। उस जब आपने कन्विक्शन कर दिया है तब आप उसको अलग अलग सेक्शंस में आप उसके पनिशमेंट सुनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए केस है 279, 337, 338 में, तो आप लिखेंगे 279 के अंडर मैं इसको 3 मंथ्स का 3 मंथ्स का इम्प्रीजन, सिंपल इम्प्रीजनमेंट, आप सिंपल दे रहे हैं रिगरस दे रहे हैं, बताएंगे सिंपल इम्प्रीजनमेंट और 200 रुपये फ़ाइन ये देती हूँ। फिर दूसरा आप पॉइंट लिखेंगे कि 337 में मैं इसको 3 मंथ्स पनिशमेंट और 3 मंथ्स का सिंपल इम्प्रीजनमेंट और 300 रुपये फ़ाइन, और 338 में वही 2 महीने 3 महीने, जो भी आप, जैसा भी मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ, जो भी सज़ा उसमें देना चाहें वो लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको लिखना पड़ेगा कि ये जो है सज़ाएँ वो साथ साथ चलेंगी या अलग अलग चलेंगी। जनरली हम लोग सज़ाओं को साथ साथ चलाते हैं, यानी कि मान लीजिए 3 सेक्शन से तीनों में 3-3 महीने चला, तो अगर हम लिख देते हैं कि एक साथ चलेंगी, कंकरेंट होंगी, तो तीनों वो 3 महीने ही जेल में रहेगा, 3-3-3 9 महीने जेल में नहीं रहेगा। इसलिए आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ता है जजमेंट में कि आप सज़ा साथ साथ सुनाएंगे, साथ साथ उसकी सज़ा चलेंगी या एक के बाद एक चलेगी। ओके, और जब आप फ़ाइन लगाते हैं
तो उस चीज़ में जैसे मान लीजिए 279 में आपने 3 मंथ्स का इम्प्रीजनमेंट और 200 रुपये फ़ाइन करा है उसके ऊपर, तो 200 रुपये फ़ाइन का इसको जो है सज़ा दी जाती है। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कि अगर ये 200 रुपये फ़ाइन नहीं देता है तो उसको 1 महीने की या जो भी 7 दिन 10 दिन 15 दिन इतने दिन का और कारावास भुगतेगा। यानी कि आपको अगर फ़ाइन लगा रहे हैं तो अगर फ़ाइन अगर पे करने में वो फेल हो जाता है तो उसको कितना पनिशमेंट देना है वो भी आपको स्पेसिफाई उसमें करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक चीज़ और उसमें लिखनी होती है, वो लिखनी होती है कि अगर इसने जेसी या पीसी में कोई अवधि बिताई है तो इसकी पीसी की नहीं, जेसी की जो इसने अवधि बिताई है वो जेसी की अवधि इसमें से जो है काटी जाएगी। यानी कि मान लीजिए आपने उसे 3 महीने की सज़ा दी है, 1 महीने वो पहले ही जेसी में रह के आ गया तो वो 2 महीने जेल में रहेगा, तो आपको जजमेंट में उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इसको इतनी सज़ा दी है। उसके बाद लास्ट चीज़ जो आप लिखेंगे, जो ये मैंने जो ये सज़ा बताया इसके ऊपर लिखा जाता है आदेश। ये फाइनल आदेश है कि कन्विक्ट करने के बाद अब आदेश क्या दे रहे हैं हम इसको इतनी सज़ा दे रहे हैं। उसके बाद लास्ट जो चीज़ आप लिखेंगे दैट वुड बी कि जजमेंट जो है वो ओपन कोर्ट में सुनाया गया, मेरे द्वारा पढ़कर सुनाया गया, इस दिनांक को मेरे द्वारा पढ़कर सुनाया गया। लास्ट में प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साइन सील लगते हैं। ओके, ऑर्डर के बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साइन सील लगते हैं और जजमेंट जो लास्ट लिखते हैं कि सुनाया गया उस पे साइन सील लगते हैं और हर पेज पे जज के साइन होते हैं। तो बेसिक चीज़ यही है, जजमेंट लिखते वक्त आपको जो ध्यान रखना है वो यही है कि आप मैं अभी क्रिमिनल जजमेंट के बारे में आपको बता रही हूँ। तो क्रिमिनल जजमेंट में आपको क्रिमिनल और सिविल दोनों में शुरुआत एक जैसी ही होती है, कोर्ट का नाम, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नाम और फिर उसके बाद पार्टीज़ का नाम, फिर किस उसमें आप यहाँ तक सेम होता है। उसके बाद क्रिमिनल में चेंज होता है कि किस सेक्शंस के अंडर आप ये जजमेंट सुना रहे हैं, 323, 341, 354 जो भी एक्सेट्रा कोई भी आप सेक्शन। उसके बाद आप फैक्ट्स लिखेंगे, डेट लिखेंगे, साइड में डेट लिखी जाती है, फैक्ट्स लिखेंगे। फैक्ट्स लिखने के बाद आप शॉर्ट में फैक्ट्स को लिखेंगे, बहुत लंबा चौड़ा फैक्ट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप जजमेंट को छोटा करेंगे उतना जजमेंट अच्छा होगा, लेकिन ऐसी चीज़ छोटा करने के चक्कर में चीज़ों को छोड़ना नहीं है। इंग्रेडिएंट्स पूरे आ जाने चाहिए। जो जजमेंट राइटिंग में जो देखना चाहते हैं बच्चे का दिमाग, जो एस्पिरेंट्स का दिमाग, वो यही देखा जाता है कि आपको वो जानते हैं कि आप लोग जजमेंट लिखना नहीं जानते हैं, वो सिखाएंगे आपको ट्रेनिंग में, पर वो ये देखना चाहते हैं कि आपके अंदर लॉजिक कितना है, आप चीज़ों को समझते कैसे हैं, आप सेक्शंस कौन से आप इम्प्लाई कर रहे हैं। इसमें आपको फैक्ट्स दे दिए जाएंगे, आपको सेक्शन नहीं बताया जाएगा कौन सा सेक्शन है, आप सेक्शन लगाइए अपने हिसाब से। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलती किस में करते हैं, सेक्शन ठीक से नहीं उसमें लगाते हैं, उसको ठीक से उसके फैक्ट्स पढ़िए, सेक्शंस पता करें, सबसे पहला काम है उसमें सेक्शन पता करना। और एक बार सेक्शन पता होने के बाद जजमेंट लिखना बहुत आसान हो जाता है। आपको सिर्फ उसके इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं, उन इंग्रेडिएंट्स को आपको स्टेटमेंट के थ्रू प्रूव कर देना है या डिसप्रूव कर देना है, जो भी कर देना है, दोनों में से एक चीज़ कर देनी है, जैसा जिसका दिमाग कहे। उसमें कोई गलती नहीं है कि मुझे सबको कन्विक्शन ही करके आना है। हर कोई जज एक फाइल में 2 जज अगर जजमेंट कर सकते हैं, दोनों का जजमेंट बिल्कुल अलग हो सकता है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान नहीं देना है कि ये कन्विक्शन का केस है, एक्विटल का केस है, केस कुछ भी हो, आप अपना पूरा दिमाग इस्तेमाल करिए, सेक्शंस ठीक से लगाइए, उनके इंग्रेडिएंट्स पूरे लिखिए चार्जेस बनाते वक्त। उसके अलावा जब आप उनको प्रूव कर रहे हैं तो सारे चार्ज प्रूव होने चाहिए, सारे इंग्रेडिएंट्स प्रूव होने चाहिए। अगर एक भी इंग्रेडिएंट रह गया इसका मतलब डिसप्रूव हो गया है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं ध्यान में रखने की। और मोटा मोटी, और जितने आप जजमेंट्स देख सकते हैं, जितने जजेस के देख सकते हैं, आप ई कोर्ट्स पे जाके मेरी फाइलों में जजमेंट देख सकते हैं। आप दूसरे किसी ऑफिसर के, आप किसी और स्टेट के हैं तो आप उन फाइलों में जजमेंट देख सकते हैं। खूब जजमेंट देखिए आप। अगर आप 5 से 10 जजमेंट भी अगर आपने पढ़ लिए, डिफरेंट सेक्शंस के जजमेंट देखिए, 5 से 10 भी अगर आपने पढ़ लिए तो आपका दिमाग खुल जाएगा। आपको फिर उसके बाद आप मेरा वीडियो दोबारा देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि मैम क्या बोल रही थी और इसको कैसे करना है। एंड अब सिविल जजमेंट राइटिंग का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। तब तक के लिए कमेंट सेक्शन में कोई भी आपकी क्वेरी होगी डालिएगा। आई टेक टाइम बिकॉज आई हैव अ स्मॉल बेबी to take care of, but I'll reply for sure. And
गुड लक, खूब तैयारी करिए, अभी खूब वैकेंसी आएंगी और स्टे सेफ। Stay happy.